हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो आज हम लोग ऑलिव बोर्ड से एसएससी सीजीएल टियर 1 एडिक्विटी पैटर्न 11 अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इंग्लिश से ही स्टार्ट करते हैं, इसको बाद में करेंगे। सेकेंड नंबर पैसिव में बदलना है। ऑल द सीनियर्स ऑफ द एकेडमिक फैकल्टी एंड द स्टूडेंट्स नो द यूनिवर्सिटी है, तो नो इज नोन होना चाहिए। तो सेकंड वाला तो होगा नहीं, फर्स्ट थर्ड फोर्थ में से कोई एक होगा। नो, अब आगे बढ़ते। नो द यूनिवर्सिटी इज डिस्टिंग्विश्ड चांसलर फॉर हिज पाइनियर्स रिसर्च। is known distinguished chancellor is known for his with all the seniors of the academic faculty. थर्ड क्या है? The distinguished by all the senior members, by all the is known by विथ। आई थिंक पहला तो नहीं होगा बिकॉज विथ है इसमें, इट शुड बी बाय। तो पहला दूसरा तो कैंसिल हो गया है। तीसरे चौथे को कंपेयर करते हैं अब। इज़ नोन टू ऑल, इज़ नोन बाय ऑल होना चाहिए बिकॉज दैट विल ओनली कन्वर्ट इन टू पैसिव। सेव एंड नेक्स्ट। Good publicity is a rare gem in today's media landscape. Genuine, uplifting stories often get lost in the dash of the sensationalism and scandal. Crowd, stream, voice, noise. Noise, voice, scream, crowd. Positive news is frequently overlooked while controversy and criticism dominate the headlines. As a result, truly deserving individuals and organizations struggle to get the recognition they deserve. They deserve is the best option. They deny, they destroy. I think मुझे फर्स्ट वाला समझ में नहीं आ रहा, बट लास्ट वाला ये तो था कि डिजर्व होना चाहिए, तो यही होगा। सेव एंड नेक्स्ट। द लिंक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट डैश लास्ट नाइट इज क्लोज्ड, वर क्लोज्ड। द लिंक है तो इसका सिंगुलर है। इज क्लोज लास्ट नाइट, वॉज क्लोज लास्ट नाइट होना चाहिए क्योंकि लास्ट नाइट प्रीवियस हो चुका है ना। ये स्पेलिंग एरर बताना है। द एंशियंट फिलोसफर्स टीचिंग हैव बीन स्टडीड फॉर सेंचुरीज ड्यू टू देयर प्रोफाउंड विजडम एंड इनसाइट। द कंपनीज the company's marketing campaign was highly successful की spelling B में गलत है। Volunteers dedicated their time to assisting underprivileged children in remote areas, C गलत है। After years of meticulous the scientist published ground in prestigious journal. The ancient philosophers' teachings have been studied for centuries due to their profound. I think पहला ही वाले में कोई भी नहीं। एक सेकेंड, हमें हैज़ अ स्पेलिंग एरर बताना है ना, तो आई थिंक दिस इज सक्सेसफुल। बी द कंपनीज मार्केटिंग, ये वाला ही होगा। सेव एंड नेक्स्ट। ऑल्ट्रिस्टिक का हमको एंटोनिम बताना है। सेल्फिश, सेल्फलेस, जेनरस, तो हम इससे देखें तो सेल्फिश ही होगा बिकॉज बाकी तीन सेम है। द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड, दैट इज फिनेटिक्स। सेव एंड नेक्स्ट। She managed to turn a blind eye, ignore something deliberately to her friend. Turn a blind eye मतलब यही होता है कि आंख बंद करके, आई थिंक यही होगा। Tanvi said, I want to learn Spanish at the nearest institution in my area. Tanvi said that I want है तो she wanted होना चाहिए। She wanted to learn मतलब फर्स्ट गलत, फोर्थ गलत। To learn Spanish at the nearest said होना चाहिए, यानी थर्ड, क्योंकि says तो होगा नहीं। Save and next. The company reduced its expenses by cutting down unnecessary costs. The company reduce करना मतलब scale down, कम कर देना। इस क्या बताना है? Character. An engineer found a brilliant solution of the complex problem they encountered yesterday. The engineer found a brilliant solution to the complex problem they encountered. An engineer मतलब इट इज़ वेरी कॉमन, तो ए तो नहीं होगा। द इंजीनियर फाउंड अ ब्रिलियंट सोल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। मेरे ख्याल से द बी ऑप्शन इज़ द मोस्ट सूटेबल आंसर बिकॉज टू द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आई थिंक इट शुड बी द आंसर। After months of hard work, the team was ready to cross that bridge when they came to it. Cross that bridge and deal, that is face the music, मतलब bear the criticism or bear the consequences, इसका यही मतलब होता है। आई थिंक ये repeated भी है। The new intern was praised for her attention on detail. क्या बताना है? एरर बताना है। The new intern was praised for her attention on detail. Her ability to work under pressure and her punctuality at meetings throughout the week. Punctuality at meetings होना चाहिए, in meetings. Punctuality in meetings. Was praised for attention on detail. Praised for her attention on detail, her ability, attention on
फॉर हर अटेंशन ऑन डिटेल, आई थिंक पंक्चुअलिटी इन मीटिंग होना चाहिए. आई थिंक एट मीटिंग डजंट मेक सेंस. 7 next. He told his friends that he had finally finished the right. Finally finished. He had finally finished. यानी I did had I had मतलब I have होना चाहिए. I have finally finished. 7 next. The a delicious meal will be cooked मतलब will my father will cook होना चाहिए simple because will be है सिर्फ तो यही होगा सिर्फ. After dinner, we returned back to the living room for coffee and brandy, and then at my host's suggestion, we played a couple of rounds. Couple rounds of bridge would be the only. तो couple of rounds तो नहीं होना चाहिए. Next. एक second. Couple of rounds of bridge. After dinner, we returned back to the living room for coffee and brandy, and then at my host's suggestion, we returned to the. एक सेकेंड, आई एम रॉन्ग. आई थिंक रिटर्न और बैक एक साथ यूज़ नहीं होता बिकॉज रिटर्न का मतलब ही होता है वापस जाना, तो मेरे ख्याल से ये होगा. वी प्लेड कपल ऑफ राउंड्स ऑफ ब्रिज वुड बी द. ठीक है वो. Many a times he gave his services free of charge to the poor widows or orphans, to slaves. Many a times he gave his services free of charge to poor widows or orphans, to slaves struggling for their freedom, to free Negroes, and to the poor and oppressed who came to him for help. Many a times he gave his services. He gave his services free of charge to poor widows or orphans, to slaves struggling to, I think, poor widows or orphans. आई थिंक पहले ही में कुछ गलत लग रहा है, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, तो आर्काइव उसे बोलते हैं. क्लॉक रूम जहाँ पे रेलवे स्टेशन होता है में जो सामान होता है, इसको बाद में करेंगे. 19, 20th, 21, 22, 23, 24. एंटोनियम एक्सपैंड का बताना है. एक्सपैंड मतलब फैलना, तो इसका स्कोप क्वेरी लिमिट होना चाहिए बिकॉज इसका मतलब होता है कम हो जाना. In his relentless pair of synonym, quest, pursuit, knowledge, new, challenge, readiness, unwavering, conventional. I think quest is similar to pursuit. Quest of happiness, pursuit of happiness. Let's do the parasymbol से पहले हम ये करते हैं. कह रहा है कि गुस्टैव एफिल was a French, पढ़ लेते हैं. When you're lucky enough to have visited Paris or have only ever dreamed of going there, chances are you know the French capital's most beloved landmark, the Eiffel Tower. The Eiffel Tower, the La Tour Eiffel in French, was main exhibit of the Paris Exposition or World's Fair of 1889. It was constructed to commemorate the centennial of the French Revolution and to demonstrate France's industrial prowess of the world to the world. The वर्ड्स फेयर ऑफ काउंटरपीस गुस्टैफल, अ फ्रेंच सिविल इंजीनियर, तो वो एक सिविल इंजीनियर था, यहाँ से ये पता चल गया है. नेक्स्ट है ला एफिल टावर इज डैश बीइंग रिकंस्ट्रक्टेड आफ्टर फ्रेंच रेजोल्यूशन, स्टीफन सोवस्टर मास्टर प्लान, और फ्रेंच कैपिटल्स मोस्ट बिलव्ड लैंडमार्क. अब एक पढ़ते हैं. Designing, however, it was actually two lesser known men, Maris Koechling and Animal, who came with the original drawing. Next है Koechlin and the chief engineers of the Gustafel engineer firm. The पता नहीं कितने difficult नाम है इनके. Together with the Eiffel and French architect Stephen Sowerster engineer submitted their plans, determined the Eiffel Tower design construction, but not with the Paris. Eiffel Tower is being reconstructed of French Revolution. क्या ये सही है? French capitals, which was main exhibit of the Paris Exposition World. It was देखो constructed after, ये तो सही है. और मास्टर प्लान तो इसका स्टीफन का नहीं था, गॉस्टेव एफेल का था, तो दूसरा गलत है, तो बोथ ANCR करेक्ट. नेक्स्ट है मॉरिस कोएचलिन आर क्रेडिटेड विथ, कौन किसके लिए किया था? ब्रिंग पीस टू मॉरिस, और उसको क्रेडिट किसके लिए किया गया था? स्टीफन, ये दो स्टीफन सोवस्त्रे. कहाँ गया? रिकंस्ट्रक्टेड भी मैंने इसमें नाम तो देखा था. मॉरिस इन कोएचलिन हु केम अप विद द ओरिजिनल ड्राइंग्स ऑफ द मॉन्यूमेंट. ओरिजिनल ड्राइंग्स थे, कमिंग विद द ओरिजिनल, तो सी बी पार्ट होगा इसका आंसर.
Save and next. Eiffel Tower was constructed for which of the following purpose? To demonstrate, inducted, to commemorate the centennial. I think both A and B the right. The construction began wrought iron tower began in, कब हुआ था? तो ईयर बताना है ना इसमें, तो वर्ड्स फेयर 1989। और कहाँ लिखा गया है भाई ईयर का नाम? जुलाई 1887। दो ही ईयर शो कर रहे हैं, जुलाई 1887। सेव इन नेक्स्ट। अब हम ये पढ़ते हैं ए बी सी डी। तो ए से स्टार्ट करें, हाउएवर द एफेक्ट्स, हाउएवर से स्टार्ट नहीं होता है मेजरली। अगर बी से देखें, स्ट्रिक्ट, अगर मैं बी लिखूं तो strict immigration laws can limit the flow of workers, especially in the industries that rely heavily on foreign labor, while more open policies may lead to influx of the skilled and unskilled workers, potentially boosting economic output. B के बाद क्या है? C. Immigration policies have impact on economics, financial, labor markets and productivity and confidence. इसके बाद D है the success. I think this would be the most, या फिर C से भी स्टार्ट हो सकता है। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, अगर मुझे टाइम लगेगा देन आई विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन। बी सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। लेट्स गो टू जनरल अवेयरनेस। आर्टिकल 72 तो ये बोलता है, आर्टिकल 72 इस तो वही होता है रेमिशन पनिशमेंट, तो पार्डन, ग्रैंड पार्डन होता है। तो फर्स्ट का तो सी है, एक ही ऑप्शन है फर्स्ट के सी में, विच इज़ दिस। पिंक बेसबॉल मुझे ये पता है कि यूएसए का नेशनल है, तो सेकंड का तो ए है। तो सेकंड का ए में 3 ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है, तो 1 2 3 4 ऐसे लिख लो। तो सेकंड का तो ए है। पिंग पोंग आई थिंक चाइना का लग रहा है, क्योंकि नाम से ऐसा कुछ चाइनीज साउंड कर रहा है। तो फर्स्ट का अगर मैं डी कर दूँ, और वॉलीबॉल और आइस हॉकी थोड़ा ठंडा होगा। वॉलीबॉल आई थिंक नेपाल का होना चाहिए, बी, और आइस हॉकी थोड़ा ठंडा तो कनाडा। फोर्थ का सी, डी ए बी सी पहला ऑप्शन। सेवन, एक सेकेंड, दिस सेवन नेक्स्ट, इसको अनमार्क करते हैं बिकॉज सेवन नेक्स्ट। In February, Odisha government has decided to provide interest-free loans to youth under new government scheme Swayam. Which of the following is not or true? Not true बताना। Under the scheme, self-employment for both for youth, 1 lakh eligible rural and equal number of urban youth, people aged from 18 to 20 eligible 18 25 under the scheme, free loans up to 1 lakh provided for starting a new business. See, this time I will be attempting all the 25 questions and I'll be working on that eliminating trick. लेट्स सी काम करता है कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है इसमें तीनों ही सही हैं, बट ऑप्शन में तीनों गलत, मतलब ऐसा कुछ तो ऑप्शन नहीं है, तो नॉट ट्रू बताना है। तो अगर मैं ये देखूँ, या तो सेकंड तो मुझे सही लग रहा है, तो आई थिंक सेकंड तो है भी नहीं। तो ऑप्शंस में या तो फर्स्ट है या तो थर्ड है। इंटरेस्ट अप टू 1 lakh विल बी प्रोवाइडेड फॉर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। या तो मुझे ऐसा लग रहा है दोनों ही है, फर्स्ट एंड थर्ड बोथ आर रॉन्ग। आई विल ट्राई कि मैं इसमें सारे अटेम्प्ट करूँ। हरप्पन इकोनॉमी की, इट इज़ अ प्राइमली अग्रीगेरियन, हाँ, एग्रीकल्चर, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर, इट हैड अ मैरिटाइम। आई थिंक सभी सही हैं इसमें, क्योंकि सभी सही थे। सुप्रीम कोर्ट एक्साइजेज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन डिस्प्यूट्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ मोर स्टेट्स। हाँ, इट इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 136। आई थिंक बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। Save and next. The period rise and fall of the sea level due to the gravitation force of sun and moon is called tide. बिल्कुल सही। The movement of water caused by the wind and atmospheric pressure is called surges. इसके बारे में मुझे नॉलेज तो नहीं है। ये पहला तो सही है, तो मैं दूसरा को सही मान सकती हूँ कि सही है भाई ये भी। हाईएस्ट रन स्कोरर इन टेस्ट मैच क्रिकेट, ब्रायन लारा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह तो होंगे सकते हैं, कपिल देव। आई थिंक ब्रायन लारा शुड बी द आंसर, बिकॉज इनके नाम पे कुछ तो रिकॉर्ड था, है मतलब। इन अ क्लासिकल डांस द आर्टिस्ट वियर स्पेशल कॉस्ट्यूम कॉल्ड कुमिल elaborate बैरल शेप्ड लॉन्ग स्कर्ट, पोंग बोलते हैं म्यूजिकल। तो ये देखो सत्रिया, मैंने देखा है कि मणिपुरी डांस में ऐसा होता है कि कुछ बैरल टाइप का स्कर्ट पहनते हैं, एंड आई थिंक कि वेडिंग्स में भी ऐसे ही होता है। रिसेंटली आई थिंक रणदीप हुड्डा की वाइफ जो है वो मणिपुरी है, तो उसने भी ऐसे कुछ कपड़े पहने थे, विच मे बी आई एम रॉन्ग, बट अभी मुझे यही लग रहा है। In March 2024, India co-chaired the second employment working group. India is a member of G20. ये मुझे नहीं पता है, तो मैं इसको स्किप करती हूँ।
कस्टम ड्यूटी हाइक लिबरलाइजेशन को प्रोस कौन करता है, सपोर्ट कौन करता है? राइजिंग प्राइसिंग ऑफ द गुड, प्रमोटिंग द पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट से रिमूवल ऑफ बैरियर्स रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट। डू नॉट सपोर्ट लिबरलाइजेशन, डू नॉट सपोर्ट है, यानी लिबरेशन को कौन सपोर्ट नहीं करता है? रिमूवल ऑफ बैरियर्स तो ये तो करता ही है। प्रमोटिंग पब्लिक सेक्टर टू कम्पीट द प्राइवेट सेक्टर, रेजिंग प्राइसिंग ऑफ द गुड, आई थिंक सेकंड तो नहीं करेगा। कस्टम ड्यूटी है, फर्स्ट और सेकंड नहीं करनी चाहिए, सेकंड फर्स्ट सेकंड नहीं करना चाहिए, तो आई थिंक थर्ड भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फोर्थ तो है बैरियर्स रिस्ट्रिक्शन बाय द गवर्नमेंट, सपोर्ट तो नहीं कर रहा है इसको, यार छोड़ते हैं, इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं। चौथ का मतलब होता है एक चौथा, यानी 1/4। हाँ, कलेक्टेड इन द डेक्कन, सही है। सरदेश मुखी 10%, आई थिंक बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। सेव एंड नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड ऑल द 3, बी आर अम्बेडकर जी ने तीनों ही 1931, 30, 30 और 31, 1930, 31 और 32। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वॉज लॉन्च ऑन 4 जनवरी, मिशन आउटले 1917। आत्मनिर्भर इसके बारे में नो आइडिया, स्किप ही करेंगे। साहित्य अकेडमी के बारे में बात करना है। इट इज़ एनुअली गिवन टू चूज द अचीव ब्रिलियंस इन लिटरेचर, इट इज़ नॉट गिवन द लिटरेरी वर्क इन द इंग्लिश लैंग्वेज। देखो गलत है, सेकंड गलत है, तो सेकंड ही गलत है सिर्फ, क्योंकि इंग्लिश में भी दिए जाते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस कौन है? इनकम टैक्स है, जीएसटी इनडायरेक्ट है, गिफ्ट टैक्स तुम्हारा डायरेक्ट पहला है, और दूसरा अगर नहीं है तो दूसरा नहीं है, यानी पहला तो है, फर्स्ट इज देयर, दूसरा नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन? पहला गलत हो गया और ऑल ऑफ द अबव गलत हो गया, एंड थर्ड तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट, मैंगो शार्स के बारे में बताना है। इट इज़ अ लोकल नेम ऑफ द प्री मानसून सावर्स इन महाराष्ट्र एंड नॉर्थन कर्नाटका। नॉर्थ कर्नाटका का तो है। इट दे हेल्प इन अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज, इट इज़ अस विथ थंडर स्टॉर्म, आई थिंक फर्स्ट एंड सेकेंड है, या सेकेंड, बिकॉज दे आर राइपनिंग फॉर द मैंगोज, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट कि महाराष्ट्र में मैंगो शार्स बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। कर्नाटका में तो बोलते, पर मैं फर्स्ट और सेकेंड के साथ ही जाऊँगी। सेव एंड नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, फेरिंग्स तो हमारा वोकल में आ जाता है, स्टमक है, रेक्टम आई थिंक सेकेंड थर्ड फोर्थ, नहीं स्मॉल एंड लास्ट, तो रेक्टम नहीं होता होगा, फिर सेकेंड एंड थर्ड है सिर्फ। नेक्स्ट, रेपो रेट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट चार्ज बाय द शेड्यूल बैंक्स, मनी लेंडर, सेंट्रल बैंक, रेट ऑफ प्रॉफिट, आई थिंक सेंट्रल बैंक के थ्रू जो इंचार्ज होती है, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम इज ओल्डर देन हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, गलत है, बिल्कुल गलत, आई थिंक इट्स रॉन्ग। बिकॉज हिमालयन पेरिनियल रिवर्स होती बहुत पहले से है वो, रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम आर इन मेच्योर एंड ओल्ड स्टेज, आई थिंक दोनों ही गलत हैं, बिकॉज ये कैसे मेच्योर ओल्ड स्टेज? सबसे पुरानी तो हमारी पेरिनियल रिवर्स थी, जो कि हिमालयन रिवर्स हैं। रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट के हिसाब से सही क्या है? प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड ओनली बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस और प्रोसेस कॉल इम्पीचमेंट, पहला बिल्कुल सही है। ही कैन बी ओनली बी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, the removal resolution to him can be passed in either house of the parliament, I think all A, B, C are true. Next, which of the following statements of GNP के बारे में नहीं पता है तो skip करते हैं। HDI का लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एक्सेस टू नॉलेज, डिसेंट स्टाइल, एक्सेस टू नॉलेज जरूरी नहीं है, बट A और C is must. Who among the first general secretary of all India किसान? अरे तो ये सहजानंद सरस्वती जी थे, इन्होंने ही इस्टेब्लिश करी थी आई थिंक। नेक्स्ट है दोल यात्रा, ये तो उड़ीसा का है, तो पहला सही है। डॉक्टर, अब ये मुझे डाउट है, बट मैं बोथ 1 and 2 के साथ जाऊंगी। हो सकता है वैष्णविज्म भी हो, बिकॉज साउथ में विष्णु जी भी हैं पर शिव जी भी हैं, तो मैं पर फिर भी बोथ के साथ जाऊंगी। वसंत ऋतु फॉल्स, वसंत मतलब वसंत ऋतु फेब्रुवरी के टाइम पे होता है, तो क्योंकि वसंत पंचमी उसी टाइम पे बनती है। चैत्र बैसाख गलत है। आश्विन कार्तिक, श्रावण भादव, श्रावण भादव तो सावन का महीना तो नहीं। ज्येष्ठ आषाढ़, आई थिंक आश्विन कार्तिक मे बी द राइट आंसर। ज्येष्ठ आषाढ़ या फिर ज्येष्ठ आषाढ़ तो नहीं होगा। चैत्र बैसाख नहीं, आई थिंक आश्विन कार्तिक। जनरल इंटेलिजेंस पे आते हैं। 9:45, 9 5 45, 45 - 24 गलत है। 9 को अगर, जस्ट अ सेकेंड गाइस, तो इसमें क्या लॉजिक लग सकता है? 9 5 45 तो नहीं लग रहा है। 9 + 5 14, 14 3 12 + 2 24, 24 2 48 + 2, 9 + 5 14 2 41 - 5 होता है 36, अच्छा ठीक, 9 4 तो 50, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 21। तो पहले तो x - 6 = 21 × 2,
21 इंटू 4 यानी 84 माइनस का 6, यानी ये होता है ना 6 40, मतलब x माइनस 6 इज इक्वल टू 21 फोर ज़ा 84 होता, तो यानी 90 होगा। 7 नेक्स्ट 25 और 18, इसमें 7 का डिफरेंस है, बट 25 प्लस 18 कितना होता है? 25 प्लस 18 8 5 13 और 43 43 का स्क्वायर तो बन नहीं रहा है ये। अगर मैं डिवाइड करूँ तो भी आई थिंक 43 से तो डिविजिबल नहीं लग रहा है ये 43। हाँ, तो अगर 43 डिवाइडेड बाय 454 करती हूँ तो 1 ज़ा 43 24, तो 24 का डिफरेंस आ रहा है। 43 इंटू 10, तो वैसे अगर मैं 42 प्लस 14 करूँ तो 56 आता है। 56 इंटू 10 करूँ माइनस 592 करूँ अगर, तो 32 आएगा डिफरेंस। 916, इसको बाद में करते हैं, लेट्स डू इट। इफ़ वन इज़ एडेड टू ईच इवन डिजिट, अच्छा ये है 3146527, हर इवन डिजिट में 1 ऐड कर रहे हो यानी 573, और हर एंड 2 इज़ एडेड फ्रॉम ईच और डिजिट, तो 3 + 2 5 3 5 2 7 और 9। हाउ मेनी डिजिट्स विल अपीयर मोर देन वंस इन द न्यू नंबर? तो 5 हो गया, 7 हो गया एंड 3 भी है, तो 573 यानी 3 डिजिट्स। सेव एंड नेक्स्ट। 5 books A B C D E are placed one above the other in a stack. 2 books are placed, अगर 1 2 3 4 5 है ये स्टैक नंबर्स, 2 बुक्स प्लेस कर रहे हैं C और D के बीच में। B इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो D, D के जस्ट बिलो B है, तो 1 2 3 4 5 यही बन गया, तो यहाँ पे C होगा, ये D है और ये B है। 1 बुक इज प्लेस्ड बिटवीन B एंड D, B और E के बीच में फिर D है, तो ये A हो जाएगा। And A is placed above, A is placed below C but above E. And how many books are placed between E and C? तो E और C के बीच में एक ही बुक है, that is 1, और कौन सी है? A है। सेवन नेक्स्ट। 122/2 होता है तुम्हारा 122/2, तो 61 होता है, 61 + 5 हो जाता है 66, ब्रैकेट में 66 ही हुआ, 66/121, और इसका मॉड 9 है, तो पहले तो 11 1 11 11 6 6, तो यानी 36/9 करोगे तो रिमाइंडर 0 आता है। सेवन नेक्स्ट। You chair the scholarship committee. A top candidate missed attaching a required income certificate because the district office was shut for the flood for the whole week. The deadline is tonight. 2 other applicants submitted all the documents on time. What should you do? Reject the application to maintain the strictness. हालांकि यही होता है, but I think ethically ये गलत है। Publicly announce a 72 hours extension to limited to the application to for the affiliation no areas and verify the before evaluation। एथिकली यही सबसे सही है, पर थर्ड ऑप्शन देखते हैं। प्राइवेटली अलाउ, गलत, प्राइवेट तो नहीं कर सकते हैं कुछ भी चीज़। सबमिट ऑल द नेम्स विदाउट एंड लेट द नेम, उनको टाइम दो, एथिकली यही सही है, इसको बाद में करेंगे। There is a wedding in the area you live. They have been playing the music very loudly from the past 2 days, which has been bothering you and your neighbors. Which of the following courses of action were adopted by you? Call the police to stop the noise pollution, and shift to the friend's house for the few days, not to be spoil sport and let the celebration continue. Ask them politely lower the volume as it is causing disturbance in the area. Very loudly bothering you. Which of the following? Politely I think ethically यही सही है। वैसे पुलिस को बुलाना भी बहुत सही रहता है, बट इसमें मैं अगर एथिकली जाऊँगी तो पोलाइटली टू लोअर द वॉल्यूम एज इट इज़ कॉज डिस्टर्बेंस इन द एरिया। आई थिंक पहले ये कर लेना चाहिए, अगर ये नहीं होता है फिर ये पुलिस को बुलाना चाहिए, मेरे ख्याल से यही होगा, फिर भी डाउट है मुझे। ईच ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इज अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। ADEQUATE, इसको पहले अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर करेंगे तो AAE नहीं, फिर DEE, ए ये हो गया, ये एंड फिर क्या है, डी हो गया, फिर आई थिंक क्यू होता है, टी होता है एंड यू होता है। हमको बताना है अल्फ़ाबेटिकली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अरेंज रिवर्स अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, सॉरी आई एम रॉन्ग, मतलब फ्रॉम राइट रिवर्स अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर फ्रॉम लाइफ, सही है बिल्कुल, विदाउट रिपीटिशन।
हाँ, विदाउट रिपीटिशन. How many letters are there in the English alphabetical series which is first and the last after arrangement? विदाउट रिपीटेशन करेंगे तो इसका मतलब है कि ये गायब करो, तो ए डी ई क्यू टी यू. तो ए और यू के बीच में कितने लेटर्स हैं ये बताना है हमको. मतलब 21 और -1, तो आई थिंक 19 ही लेटर्स होंगे एथिकली ए और यू के बीच में. 988, 924 डैश 839, 814 है ये, एंड 798. तो इसका कितना डिफरेंस होता है? 988 में 924 घटाएंगे तो ये 64 हो गया, और 839 में अगर मैं 814 घटाती हूँ तो 25 है, और इसमें 814 में अगर 798 घटाते हैं 798 तो 616 हो गया. तो अगर 8 का स्क्वायर है, 5 का है, 4 का है, तो आई थिंक ये 7 का स्क्वायर हो गया, यानी 49 माइनस करना होगा. 924 में 49 माइनस करो तो ये तुम्हारा 875. पिंक पोल इज फिक्स्ड 6 मीटर टू द ईस्ट ऑफ ग्रीन पोल. ये कोई ग्रीन पोल है, इसके 6 मीटर पे पिंक पोल है. वाइट पोल इज फिक्स 2 मीटर वेस्ट ऑफ येलो पोल एंड 25 मीटर नॉर्थ ऑफ पिंक पोल. तो वाइट पोल ये है, तो वाइट पोल तुम्हारा 25 मीटर है, एंड वाइट पोल 2 मीटर वेस्ट ऑफ येलो पोल. येलो पोल कहाँ है तुम्हारा? येलो पोल ये होगा, तो ये 2 मीटर इसके बीच के डिफरेंस है. रेड पोल इज़ फिक्स्ड 4 मीटर नॉर्थ ऑफ, तो ये तुम्हारा रेड पोल है 4, और ब्लैक पोल इज़ फिक्स्ड 8 मीटर ईस्ट ऑफ ग्रीन पोल. 8 मीटर ईस्ट यानी 6 + 2, तो यानी ये होगा तुम्हारा, ये ब्लैक पोल है. 2 और. व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू, तो कितना है तुम्हारा? तो ये तुम्हारा 25 + 4 29, तो एक ही ऑप्शन है 29 मीटर साउथ. सेव एंड नेक्स्ट. When you walk down the streets of Bangalore, there are two things in abundant: engineers and entrepreneurs. With a new startup mushrooming almost on a daily basis from hostel rooms and universities, it is risky to excel at your own idea because someone else is already working on the same idea somewhere. Once you have a functional prototype of the product, you should register for a patent or a trademark to protect your idea. हाँ, बिल्कुल सही है. People with similar ideas should collaborate to complete task more effectively. Is it worth it? आई थिंक पहला वाला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि तुम्हारा कोई आइडिया मतलब ना ले. इट इज़ सिमिलर आइडियाज. आई थिंक बोथ 1 and 2 मे फॉलो. मेरे ख्याल से दोनों फॉलो कर रहे हैं. मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं इसको. सेव एंड नेक्स्ट. इसको देखते हैं. एच और जेड में क्या रिलेशन है? एच और जी में, एच इज़ द फादर ऑफ जी. एच जो है वो जी का फादर है. जी और एस में क्या रिलेशन है? जी इज़ द सन ऑफ एस. जी जो है मतलब एस उसकी मदर होएगी बिकॉज वो उसका पिता है, तो ये सन है. और एस और आर में क्या रिलेशन है? एस इज़ द मदर इन लॉ ऑफ आर, तो यानी आर उसकी वाइफ होगी, ये हस्बैंड है. आर और डब्लू में क्या रिलेशन है? आर इज़ द सिस्टर ऑफ डब्लू की बहन है. जी डब्लू से कैसे रिलेटेड है? तो जी उसका जीजा हो गया, तो ब्रदर इन लॉ. सिस्टर्स ब्रदर, सिंपल ब्रदर इन लॉ. जी और डब्लू, एक सेकेंड, जी और डब्लू सही है. सेव एंड नेक्स्ट. मार्क्ड, ठीक है. सेव एंड नेक्स्ट. आर एस टी क्यू नहीं, डी ई एफ. तो क्यू डी होता है 4, 18, 9, 22, 5 और 18. एंड व्हाट इज टी? टी इज 20, 6, 21. एच इज 8, 19 और 6. तो 4 + 2 है ना ये, डी ई एफ. एंड 18, 19, 5, 6, 9 -1. तो यहाँ से तुम्हारा मतलब x होता है तुम्हारा 24, 25, 12, 15, 19 और ई होता है तुम्हारा 5. और दूसरा लेते क्वेंच क्या होता है? 17, 21, 5, 14, 3 और ई एच होता है 8. इसका क्या रिटर्न है? 23, 19, 13, 4, 9, 4. ये क्या बात हो गई?
तो मतलब ये है, तो 25 + 2 27 और 24 + 2 26, फिर 88 8 + 9 यानी ना 5 + 1 5, 5 + 1 6 और 3 + 1 19 + 1 20। तो 27 क्या होता है, ए होता है, जेड होता है आँख, और यहाँ क्या आएगा एफ और टी। ए जेड एफ टी एक ही ऑप्शन में है, सी पार्ट। 7 नेक्स्ट। 8, अच्छा तो 8 × 2 होता है +3, दैट इज़ योर 19। 19 × 2 +3 दैट इज़ 41। 41 × 2 +3 इज़ 85। तो 85 × 2 इज़ 170 +3 इज़ 173। 7 नेक्स्ट। एले सेलिब्रेट्स हर बर्थडे ऑन थर्सडे, बिली सेलिब्रेट्स 30 डे। एले जो है वो थर्सडे को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है, मतलब थर्सडे को एले सेलिब्रेट कर रही है या कर रहा है। बिली सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे 30 days आफ्टर एले, एंड स्टीव सेलिब्रेट इज 150 days आफ्टर बिली। तो बिली कब कर रही होगी, तो अगर एली तुम्हारा थर्सडे को कर रहा है, तो थर्सडे है, तो अगर मान लेते हैं उस दिन 1 तारीख है, तो 1 + 7, मतलब 1 + 7 होता है 8 + 7 15 + 7 22 + 7 29। 29 है ना ये, तो 30 days बाद में कर रहा है, तो 29 को भी थर्सडे होगा, बट वो फ्राइडे को करेगा। तो बिली तुम्हारा जो है वो फ्राइडे को कर रहा है, क्योंकि 30th डे आफ्टर 30 days है, तो फ्राइडे को करेगा। फिर तुम्हारा जो स्टीव है वो तुम्हारा 150 days आफ्टर बिली। तो पहले तो 150/7 करो, तो 7 2 ज़ा 14 और 1 0 7 1 ज़ा 7, तो 3 दिन। तो फ्राइडे, फ्राइडे तो हो गया, सैटरडे, संडे और मंडे और ट्यूसडे। आई थिंक ट्यूसडे वुड बी द आंसर। 7 नेक्स्ट। ऑल पेपर्स आर शीट, सभी पेपर्स जो हैं वो शीट हैं, एंड ऑल शीट्स आर नोटबुक, सभी नोटबुक शीट्स हैं, सभी जो नोटबुक्स हैं वो शीट्स। ऑल पेपर्स आर शीट्स, ऑल शीट्स आर नोटबुक, नो पेपर इज़ नोटबुक, गलत। सम नोटबुक्स आर पेपर, बिल्कुल सही, सेकेंड्स फॉलो कर रहा है सिर्फ। 7 नेक्स्ट। 12 37 37 - 12 करो अगर, तो विच इज़ इक्वल टू 37 में अगर 12 घटाएंगे तो 25 होता है, और 52 + 9 है, समझ गए। तो 24 + 12, पहला ही ऑप्शन, 24 + 12 36 होता है। 7 नेक्स्ट। 502 में अगर 502 में 410 घटाएंगे तो वो 592 होता है, और 764 में अगर मैं 672 घटाऊँ, 764 में 672, तो 292 ही होता है, यानी 206 माइनस का नहीं होगा, माइनस का नहीं प्लस का, फिर से 92 करना पड़ेगा, तो 298 आंसर है। 7 नेक्स्ट। 728 इंटू को -2 डिवाइडेड बाय 26, गलत, सेंस नहीं बना रहा है। 728 इंटू 2/26 माइनस का 26 प्लस का 58। तो पहले अगर मैं 728 को अगर 13 से डिवाइड करूँ तो आई थिंक 13 5 जा और 6 और 13 2 जा, ये कैंसिल, 56, पहला दूसरा भी गलत है। प्लस को डिवाइड से इंटरचेंज करूँ, यानी 728 इंटू 2 + 26/26 माइनस का 58, तो ये तो 1 हो जाएगा। 728 इंटू 2 करेंगे तो ये 1456 हुआ, +1 14 +1 माइनस का 58 कर रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट आइडियल आंसर, विच इज़ थर्ड। 7 नेक्स्ट। ए है -ID-C-D-A-C DCI-A-D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4, 4 का अगर पेयर करो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ए और डी से ख़त्म हो रहा है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी ए। आई थिंक ACID पेयर बना रहा है, ACID 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 ACID, तो CAI, तो आंसर शुड बी CAI। CAI एक ही ऑप्शन में है, विच इज़ लास्ट वन। 7 नेक्स्ट। 66 और 88। 66
18 18 फोर जा 72 होता है 38। पहले अच्छा, अगर मैं 66 87 में 66 घटाऊंगी तो 21 होता है। 83 में अगर मैं 45 घटाती हूँ तो 38 होता है। अच्छा, तो मतलब दोनों का डिफरेंस बीच वाले के बराबर है। तो वैसे अगर 116 में 39 घटाऊंगी तो आई थिंक फर्स्ट वाले ही गलत है, क्योंकि 66 में अगर 18 प्लस करते हैं तो 87 तो नहीं होता है। 7 नेक्स्ट। एफ होता है तुम्हारा 6, 21 और 14। एच होता है तुम्हारा 8, 23 और 13। तो 6 + 2 21, 21 + 2 14 +1 है ये, मतलब 13 + 1। तो यानी ईट का होता है 5, 5 + 2 7। ए का होता है तुम्हारा 1 + 2 3, यानी सी हो जाएगा ना तुम्हारा, आई जे के ABC। तो जी सी होना चाहिए कि ऑप्शन में है, दैट इज़ दिस। 7 नेक्स्ट। इसको हमको बताना है। तो पहला, अगर मैं ध्यान से देखूं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में एलिमिनेट कौन सा हो रहा है। अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो पहले दूसरे को अगर कंपेयर करूँ, अगर मैं चौथे को देखूँ तो चौथा देखो एलिमिनेट हो चुका है, क्योंकि उसका जो एच है वो नीचे है, ठीक है। और अब मैं कंपैरिजन करती हूँ तो अगर ध्यान से देखो तो तीसरा भी एलिमिनेट हो गया फॉर दिस ट्राइंगल पार्ट। तो पहले दूसरे में से कोई एक आंसर होगा। तो ध्यान से अगर दोनों को कंपेयर करते हैं फिर हम ओरिजिनल फिगर से देखेंगे। तो ध्यान से देखो तो ये इधर है, तो आई थिंक फर्स्ट वाला ही इज़ द राइट आंसर। 24 इंटू 5 करते हैं 120 + 2। 31 इंटू 5 155 + 2, तो 40 इंटू 5 होता है 200 + 2 202। जनरल इंटेलिजेंस में अब जो छोड़े थे वो देखते हैं। 25 और 18। देखो 25 में अगर मैं 18 माइनस 25 में अगर 18 माइनस पे कर रही हूँ तो 7 आ रहा है, और अगर प्लस भी कर रहे हैं तो भी नहीं पता। 454 में इसको एक काम करते हैं, मैथ्स में आते हैं बिकॉज टाइम कम बचा है, इसको बाद में करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट अक्रॉस द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब ये है, पॉइंट हमारा कहाँ है 2, -3, यानी यहाँ कोई पॉइंट होगा ये 2, -3 एक्स एक्सिस में कर रहा है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस में हो रहा है ना। ये कोई पॉइंट है, यानी 1 2 3, और ये, और मतलब ये पॉइंट है समझ लो, क्योंकि 1 2 3, 2, -3 है ना ये, यानी इधर पॉइंट है। आई एम सो सॉरी गाइस, इधर कोई पॉइंट है दिस विच इज़ 2, -3। इसका रिफ्लेक्शन अगर मैं इधर करूँ एक्स एक्सिस में, 2 तो यही रहेगा और ये +3 हो जाएगा। 7 नेक्स्ट। ट्राइंगल XYZ इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये तुम्हारा कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। cos x, अगर cos x 8/17 है ना, तो ये 8 है, ये 17 है। तो मतलब 17 + 8 होता है 25 × 9, यानी 5 × 3, यानी ये 15 हो जाएगा। तो sin x कितना हो जाएगा, sin x की वैल्यू हो जाएगी 15/17, प्लस cos y कितना हो जाएगा, cos 90 तुम्हारा कितना होता है 0 होता है। tan z कितना हो जाएगा 8/15। तो इनको इनको मतलब 15/17 + 8/15, तो 17 × 15, ये होगा एलसीएम। 15 का स्क्वायर होता है 225, प्लस 17 × 8 तो तुम्हारा 136 होता है। और इसमें अगर 225 प्लस करोगे तो 361 कुछ ऊपर आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है। 7 नेक्स्ट। इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय इतना, मतलब 37A 52B, तो ये तो ज़ीरो होगा, दिस इज़ फॉर श्योर। और बाकी तुम्हारा 11 से होना चाहिए, तो 3 + A + 2, यानी 5 + A माइनस का 7 + 5 12, तो मॉड होता है ये 5, तो हो जाएगा तुम्हारा A माइनस का 7, तो A तुम्हारा 7 होना चाहिए। तो A + B तुम्हारा 7 + 0 यानी 7 आएगा। इसको देखिए, यानी x इज इक्वल टू √110 प्लस x है ना ये, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा x² माइनस का x माइनस का 110 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का x, या एग्जाम करते हैं, माइनस का 11x और प्लस का x होगा यहाँ पे, इज इक्वल माइनस का 110 इज इक्वल टू
तो एक्स माइनस 11 प्लस का 1 एक्स माइनस, नहीं 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 कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं, ये 10x होगा, सॉरी 10x होगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा एक्स माइनस 11 प्लस का, तो x 11 हो जाएगा यहाँ से। 7 नेक्स्ट, द मीन डिस्ट्रीब्यूशन इतना है, मोड इतना है, कार्ल्स पियर्सन स्टैंडर्ड, तो मीन माइनस मोड तुम्हारा होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10 एंड कार्ल्स पियर्सन, तो मीन माइनस मोड यानी 5 अपॉन 10, 1 माइनस 5/10, 1 माइनस 0.5 या 1 प्लस हो जाएगा क्या, तो 1 प्लस कर लो, मतलब मुझे फॉर्मूला मैं फिर से बोल रही हूँ, आई थिंक 1 प्लस 0.5 यानी 1.5 होगा। 7 नेक्स्ट, द साइड ऑफ अ सॉलिड क्यूब इज इतना, एक 20 सेंटीमीटर है, टू आइडेंटिकल सिलिंड्रिकल होल्स, इसको बाद में करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एंगल बिटवीन टू tangents drawn from एक्सटर्नल पॉइंट m टू द सर्कल ऑफ रेडियस x एट द सेंटर इज इतना, मतलब ये कोई सर्कल है और ये कोई पॉइंट m है, इससे तुम्हारा क्या कह रहा है, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल टू द सर्कल ऑफ रेडियस, इनके बीच का ये तुम्हारा 60 है, और वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ रेडियस एक्स, तो ये अगर 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ये सेंटर है कुछ o, विथ सेंटर o, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ओ एम इज इतना, ओ एम तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो मतलब ये 30 है, ये 90 है, एंड ओ एम है तुम्हारा 635, तो ये निकालना है एक्स। तो अगर मैं इसमें लगाऊँ तो ये कोई ट्राइंगल है जिसमें से ये एक्स है और ये तुम्हारा 635 है, और ये तुम्हारा कितना गिवन है, 30 गिवन है ना, तो x अपॉन 635 इज इक्वल टू कॉस 30 यानी √3/2, 635 √3/2, तो अगर 635 डिवाइडेड बाय 2, मतलब डिवाइडेड बाय 2 करें तो ये लगभग 317, 3.5 आएगा, 317.5। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एम आई डूइंग द राइट थिंग, एक सेकेंड, ये 60 है, सॉरी गाइस, ये 60 होगा, तो आंसर इज 317.5। 7 नेक्स्ट, द टैंक ए फिल्स अ टैंक इन 40 मिनट्स, ए कर रहा है 40 मिनट में और बी कर रहा है 60 मिनट में, सी खाली कर रहा है 80 मिनट में, तो ये माइनस है, तो इसका एलसीएम अगर ध्यान से देखो तो 240 आ जाएगा, प्लस का 6 प्लस का 4 और ये माइनस का 3 है। ऑल 3 पाइप्स आर ओपन, 6 + 4 10 - 3 7, एंड पाइप बी इज क्लोज 10 मीटर्स बिफोर द टैंक इज, तो ये एक्स कर रहा है, फिर बी को क्लोज कर दे रहे हैं, अगर टोटल टाइम एक्स है, 10 मीटर बिफोर, तो आखिरी में तुम्हारा ए प्लस सी काम कर रहा होगा, यानी 6 - 3 × 10 इज इक्वल टू 240, तो 7x इज इक्वल टू 210, तो x इज इक्वल टू 30। टोटल टाइम्स कितना है तुम्हारा, 30 + 3, 30 + 10 है ना, तो 40 आ जाएगा, क्योंकि 30 मिनट्स x है, x + 10 है। इसको करें क्या, बाद में करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन t - 4 आवर्स इज, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इज दिस, स्पीड ऑफ द बस इज 32, तो बताना है, तो यानी 32 ब्रैकेट में t - 4 इज इक्वल टू 4 5t + 1, तो ये 8 है, यानी 8t माइनस का 32 इज इक्वल टू 5t + 1, तो 3t इज इक्वल टू 32, तो t इज 33, t इज इक्वल टू 11, तो t की वैल्यू 11 आ जाएगी। 7 नेक्स्ट, द रेशियो बिटवीन मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है वो 11:5 है, तो सेविंग 6 हो जाएगी। इफ़ द परसेंटेज इनकम इंक्रीज बाय, अगर ये तुम्हारा 11 × 1.2 है, एक्सपेंडिचर तुम्हारा 30% यानी 5 × 1.3 है, तो मंथली सेविंग्स कितनी हो जाएगी, तो पहले अगर ये करेंगे तो 11 × 1.2, ये तुम्हारा 13.2 है और ये 6.5 है, इसमें अगर 6.5 घटाते हैं तो पॉइंट नीचे 7 आ जाएगा, और 6, तो कितना डिफरेंस है, 0.7/6 × 100, 0, तो ये तुम्हारा 3, 2 3 2 5 यानी 35/3% इंक्रीज़ किया है, तो 11 होल 2/3% इंक्रीज़ किया है। 7 नेक्स्ट, ये बताना है हमको, क्लोजेस्ट वैल्यू बतानी है, तो अगर मैं इसको ब्रेक करती हूँ, मतलब √28
प्लस और 10√3 है। तो अगर ध्यान से मैं इसको ब्रेक करूं तो अगर 5 प्लस नहीं, 5 5 ज़ा कितना होता है 25, हाँ ये अगर √3 + 5 का स्क्वायर हो जाए, ये हो जाएगा प्लस, सॉरी ये तुम्हारा यहाँ से √3 + 5, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, माइनस। अगर मैं 7 - 4 √3 को ब्रेक करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस का है तो ये 2 - √3, 2 - √3 का स्क्वायर हो जाता है ये। तो ये हो जाएगा तुम्हारा √3 + 5 माइनस का 2 + √3। तो ध्यान से देखो तो ये 2√3 है और प्लस का 3, √3 की वैल्यू हमें पता होती है 1.732, तो 1.732 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 732 × 2 करो तो 464.3, और इसमें अगर 3 ऐड करो तो 6.46 समथिंग आएगा, तो 6.5 वुड बी एन आइडियल आंसर। द मार्केट प्राइस, कोई मार्केट प्राइस है ऑफ एन आर्टिकल इज़ 5, तो मार्केट प्राइस और एमपी और सीपी, ये अगर एमपी 100, अगर मान लेते 7 का है ना तो जो 700 ले लो, तो 700 ब्रैकेट में 1 + 7 5 ज़ा 36/7, तो ये तुम्हारा 36 + 7 कितना होता है 43, 43/7, 36 + 7 होता है 43, तो ये तुम्हारा 43 और अपॉन 100 है ये, विच इज़, क्या कर रही हूँ यार, एक सेकेंड, अगर ये 700 है तो इसका पहले तो निकाल लो 43/7, तो ये कितना 43, पहले इसका निकालो तुम, क्या कर रही हो, 700 × 36/7, तो ये तुम्हारा 3600 आ जाएगा, इसका अगर 36/5 तो 36, मतलब ये 736 आएगा टोटल, 736। इसका अगर मैं 36/100 निकालती हूँ, 700, 36 × 7 कितना होता है, अरे यार क्या कर रही हूँ मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है 700, तो पहले 700 × 7 5 ज़ा 35, 36/700, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 36 × 7 है तुम्हारा 4252, और इसमें अगर 700 में कर लो तो ये 952 होता है, ठीक है, ये है फाइनल। व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्काउंट्स कैन बी ऑफर टू सेल एट नो, कोई भी लॉस, मतलब 952/700 इज इक्वल टू कोई भी लॉस नहीं है, यानी 100 प्लस माइनस ज़ीरो ही रहेगा, अपॉन डिस्काउंट निकालना है हमको 100 - D। तो यहाँ से ध्यान से देखो, तो पहले तो 952/4, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 238, और 700/4 करेंगे तो ये 175 हो जाएगा, और तो मतलब 100 - D इज इक्वल टू 175 × 100/238। तो अगर 238 को फिर से मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो ये 119 आएगा और ये 50 आ जाएगा, तो 175 × 50 करेंगे तो 875, तो 100 - D इज इक्वल टू 8750/119। तो इसमें अगर ध्यान से देखो तो यानी 11900 - 8750, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3150/119, डिवाइडेड बाय 119 करेंगे, और 119, तो ऐसे मतलब ध्यान से देखो तो 2 और कोई 119 × 2 होता है 238, टू से करें अगर तो 238, 770 आएगा, तो समथिंग फिर आई थिंक 6 से जाएगा तो 2.6 समथिंग, आई थिंक 3% के साथ मैं जाऊँगी। इतना समय देने के बाद भी आई एम नॉट गेटिंग द करेक्ट आंसर। ABC एक ट्राइंगल है, A B और C, एंड AD इज़ द मीडियन, AD कोई मीडियन है, इंटरसेक्टिंग द BC एट D, 3 मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल मीट एट, अच्छा तो ये सेंट्रॉइड हो गया तुम्हारा,
जी पे मीट कर रहे हैं। ए डी तुम्हारा गिवन 2:1 में बांटता है, तो 3 की वैल्यू तुम्हारी 45 है, तो 1 की वैल्यू 15 हो, ये तो 30 होगा इसका मतलब, और ये 15 है, तो डी जी बताना है। डी जी इज़ 15, क्वाइट एन ईजी वन। 558526117 एंड डिवाइड विद द ग्रेटेस्ट नंबर ए, रिमाइंडर ईच केस आर सेम। तो अगर 5852, इसकी एक ट्रिक होती है 6117 और 6647। सबसे पहले इसके बीच का डिफरेंस निकाल लो। तो 6117 में अगर 5852 माइनस कर रहे हैं तो 5, 6 और 2 इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो। 6647 में अगर 6117 कर रहे हैं तो ये तुम्हारा 7 - 7 0 3 और 5, इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो ये हो जाएगा 5 2 65। ठीक है, तो हमको बताना है, तो एक काम इस यही डिवाइड करें जिसमें सेम, तो सम ऑफ डिजिट 6 to 8 + 5 13 इस द आंसर। डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस 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 और उसके डिजिट्स को प्लस कर दो, ये आंसर हो जाता है। तो ए यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो ये भी एक आई थिंक बहुत ही 2021 में जब प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब जब उसके सेट्स प्रैक्टिस कर रहे थे तब ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते थे। ये 2 है, a - b और इधर 6 ले आओ। ठीक है, ये हो गया, तो a की वैल्यू ये आ जाती, a इज़ इक्वल टू 1/1, b इज़ इक्वल टू -1/1 और c की कुछ, c क्या है तुम्हारा, इधर ले आओ, c तुम्हारा -4c है इधर, तो ये हो जाएगा -4c है, तो ये तुम्हारा 2 जाएगा, तो -2c, c इज़ इक्वल टू -2/1, तो a + b + c यानी 1 - 1 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4 आएगा। आपने ये क्वेश्चन देखा होगा अगर आपने 2021 के सेट्स लगाए होंगे। सो नेक्स्ट है, फॉर द वैल्यू ऑफ k 5/2 इज इक्वल टू k, नहीं 5.2 इज इक्वल टू माइनस का k/5, यहीं से आ जाएगा 25/2 यानी माइनस का 25/2 क्योंकि ये माइनस है। सेव एंड नेक्स्ट। 92 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो क्या करते हैं, 92 को ऐसे लिखते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 46 आएगा, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, फिर 2 से करें 23, रिमाइंडर 0, फिर 2 से करा 11, रिमाइंडर 1, फिर 2 से किया 5, रिमाइंडर 1, फिर 2 से किया 4, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, फिर 2 से किया 1, रिमाइंडर 0, तो आंसर है तुम्हारा 10,111। 10, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, 10 तो है, 10,11100 पहला ऑप्शन। सेव एंड नेक्स्ट। स्क्रीन बार बार क्यों जा रही है यार। 10 स्कोर इतना है, ये नहीं आता। डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शनल, इसका फोर्थ 6/8 इज इक्वल टू 18/x, तो यहाँ से फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 24। मीन प्रोपोर्शनल कितना है, तो मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 6 and 35, ये तुम्हारा x नहीं, इसको y ले लो, तो y 24 है, और मीन प्रोपोर्शनल इज x, तो यानी √6 × 37.5 इज इक्वल टू x, तो ये अपॉन 10 जाएगा, 2 3 जा और 2 5 जा जाएगा, और 375 में अगर 5 से डिवाइड करें तो ये 75 जाएगा, फिर इंटू 3 करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से 15 आ जाएगी। तो हमको क्या बताना है, x² माइनस का क्या, एंड द मीन एक सेकेंड, डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस एंड द मीन प्रोपोर्शनल इज, अच्छा x की वैल्यू आ जाएगी 24 माइनस का 15, तो 24 माइनस 15 होता है 9, तो 9² - 1 यानी 81, ये x नहीं है सॉरी, x तुम्हारा 9 है। नेक्स्ट करते हैं अगर, तो ये क्या है तुम्हारा, रेट इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट 4 ईयर इतना है, मतलब 4 साल का 15 है, एंड 4 साल के बाद 24 हो जाता है, 7 साल के लिए करता है, तो यानी टोटल 800 पहले ही ले लो, 8,000 अपॉन 100 ले लो, तो 15 × 4 बच्चे कितने साल, 3 × 24, तो 15 4 जा कितना होता है 60, 24 3 जा होता है 90, 24 3 जा 72 होता है, 92 नहीं होता है, फिर ये तो 0 कैंसिल हो गया, और 72 + 60 होता है 132, यानी 132 × 80, तो इंटू 8 कर रहे हैं तो 6501 10560। नेक्स्ट है, पेरीमीटर फॉर स्क्वायर हुज डायगोनल इज इतना, तो a√2 की वैल्यू गिवन है 15√2, तो यहाँ से a 15 आ जाएगा, इज इक्वल टू द रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर
पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, तो पेरीमीटर यहाँ से 60, 60 इज इक्वल टू द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज टू, लेंथ अगर l प्लस बी है यानी l प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 30, पर इसमें गिवन है कि रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 10 सेंटीमीटर मोर, 10 मतलब l माइनस बी की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे l तुम्हारा 20 आ जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट। करेक्ट मतलब 17/30, 7/15, 27/50 और 11/20, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो अगर 17 को 30 से कर रहे हैं तो 35 से जब जाएगा 0.6 तो जाएगा, 0.5 समथिंग आएगा। 7 को 5 से करेंगे अगर तो 15 5 जा तो जाएगा नहीं, 0.4 समथिंग आएगा। फिर अगर मैं 27 को 50 से करती हूँ तो ये तुम्हारा 55 जाएगा एंड 0.54 आ गया। और 11 को अगर 20 से करूँगी तो अगर ये 10 है ये मतलब 0.55 आ जाएगा। तो हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो इसका मतलब हमको ये थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। डिवाइड करो अगर 30 को 17 से, सॉरी 17 को 30 से, तो 0.0 ये 5 जाएगा तुम्हारा, 150 206 तो मतलब 0.56 आएगा। तो बस हो गया। तो डिसेंडिंग इज 17/30 आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा 11/20 आएगा, फिर 27/30 आएगा, सॉरी 50 आएगा, एंड देन इज लास्ट इज 7/15। तो 17/30 से स्टार्ट है, फिर 11/20, फिर ये, तो आंसर इज दिस वन। नेक्स्ट 25th नंबर। इसको करने से पहले अब हम जो छोड़े थे वो देखते हैं। द प्लेयर हिट्स अ बास्केटबॉल शॉट एट 3/8 इंडिपेंडेंटली ऑन ईच अटेम्प्ट इफ शी टेक्स 8 शॉट्स एंड फॉर दिस प्रोबेबिलिटी दैट शी स्कोर्ड एग्जैक्टली 4 टाइम्स। तो एग्जैक्टली 4 बार कर रहा है तो यानी 4 हिट करेगा, तो बचेगा कितना वो, क्योंकि वो तुम्हारा 8 शॉट, तो बचेगा 4 शॉट, तुम्हारा कितना हो जाएगा दिस। एंड फिर कह रहा है ये हो गया, तो ऑप्शन कौन से एलिमिनेट हो गए हैं, क्योंकि 4 एग्जैक्टली तो पहले ही ऑप्शन होगा, बिकॉज 4 उसी में बन रहा है सिर्फ। सेव नेक्स्ट ये करें। द साइड ऑफ अ सॉलिड क्यूब इज इतना, तो ए की वैल्यू अगर 20 है, दो आइडेंटिकल होल्स मतलब अगर ये कोई क्यूब है, फिर कह रहा है दो आइडेंटिकल सिलेंडर होल्स ऑफ ईच रेडियस ए, दो आइडेंटिकल सिलेंडर होल्स हैं जिनकी रेडियस तुम्हारी गिवन है कितनी 7 और हाइट तुम्हें गिवन है 8 ड्रिल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू सॉलिड, इसका तो 6 से स्क्वायर होता है, 6 × 20 का स्क्वायर यानी 400 × 6 2400। तो अगर मैं थोड़ा सा 6 से स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400 × 6, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू। यार तो यार देखा जाए तो 2400 से कम होना चाहिए, बट इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको छोड़ते हैं, 10 नंबर देखते हैं, ये कर सकते हैं, शायद थोड़ा सा बड़ा जाएगा बट आई थिंक कर लेंगे हम लोग। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फाइंड द समड ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल बाय C3 C6 एंड C7। तो डिस्टेंस टाइम इतना, डिस्टेंस कितना है, अच्छा अगर मैं 1 2 3 4 5 6 ले लूँ तो हमको मतलब 3 से है, 6 से है और 7 से है, ठीक है। तो 3 का कितना है तुम्हारा, इसको हटा देते हैं, तो टाइम और स्पीड लिखते हैं। तो 3 की स्पीड है तुम्हारी 90 और 6 की है 64 और ये 96 है। टाइम अगर देखें 3 का टाइम कितना है, 3 का है 5 और 2.5 एंड दिस इज़ 5.5। तो हमको ये स्पीड है ये, तो इसका तुम्हारा 450 हो जाएगा। फिर 25 मतलब 2.5 × 60 25 करें तो 0 6 1, और अगर मैं 11 × 5 × 96 करती हूँ तो 11 × 90, अरे यार इसको ऐसे ही कर लेते हैं, मतलब 96 × 55, तो 96 × 5 होता है तुम्हारा 084 और ये भी तुम्हारा 480 हो जाएगा, तो 08 × 12 और 528। तो ये तुम्हारा 528 आ गया। तो डिस्टेंस कितनी हो जाए, 528 + 160 करेंगे तो + 450 का डिस्टेंस है, तो 8311 1138 ऑप्शन इज देयर। सेव एंड नेक्स्ट 20th नंबर। इसे इसका मुझे नहीं आता है, ये वाला देखें अगर
तो ये देखें, अगर द कंस्ट्रक्शन कंपनी इज़ वर्किंग ऑन अ अनफिनिश्ड फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम इट्स बेस, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द करंट इज़ 30 डिग्री। ये कोई बेस है स्काई स्क्रेपर से, अभी क्या तुम्हारा 30 डिग्री है और इसकी डिस्टेंस है तुम्हारी 198। द कंपनी प्लान्स टू इंक्रीज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग सो दैट सेम फ्रॉम सेम द न्यू एंगल इज़ इतना। अब वो इतना कर रहा है, अब उसकी जो है ये 60 डिग्री है। डिटरमाइन हाउ मच, तो ये अगर कितना था तुम्हारा क्या 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 एंगल ऑफ, अभी ये एच है, ये 190, तो एच अपॉन 198 इज इक्वल टू tan 30 यानी 1/√3। तो ये तुम्हारा 198/√3 हो जाएगा, 198/√3। तो ये तुम्हारा x है। तो आंसर शुड बी x प्लस 198 अपॉन √3 अपॉन 198 इज इक्वल टू 198 √3। तो ये तुम्हारा 198 √3 हो जाएगा। और इधर अगर -198 अपॉन √3 करेंगे तो 198 इंटू 3 माइनस का 198, तो ये तुम्हारा 396 अपॉन 396 अपॉन रू ओके। सो इट्स 134.5 एंड 79% एक्यूरेसी है। लेट्स सी द सोल्यूशन। सो इट्स जनरल इंटेलिजेंस में 41 है, अवेयरनेस में 14.5 है, कॉन्स में 41.5 है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में 47.5 है। तो सोल्यूशन देखते हैं। तो पहले तो इसमें क्या क्या गलत किया है। when you walk down the streets there are two things in abundant। तो entrepreneurs तो ये था, once you have a functional people with, तो मतलब सिर्फ पहले ही फॉलो कर रहा था, लग भी रहा था ये मुझे। 13 नंबर क्या है, एक सेकेंड, वाई इट्स नॉट बी कैन नॉट बी डिटरमाइन, ब्रदर इन लॉ ही तो था वो। इसको फिर से करें अगर, एक मिनट, लेट मी जस्ट स्प्लिट। एच और जी में क्या रिलेशन था, एच इज़ द फादर ऑफ जी, एच जो है वो जी का बाप है। और जी और एस में क्या रिलेशन है, जी इज़ द सन ऑफ एस, तो यानी एस उसकी क्या होगी, मदर। जी, ये जी है, मदर है। एस और आर में क्या रिलेशन है, एस इज़ द मदर इन लॉ ऑफ आर, तो वो आर की मदर इन लॉ है, ठीक है। और आर और डब्ल्यू में क्या रिलेशन है, आर इज़ अ सिस्टर ऑफ, ये मतलब ये वाइफ है तो ये हस्बैंड है, और आर सिस्टर है किसकी, आर सिस्टर है किसकी, डब्ल्यू की, आर सिस्टर है डब्ल्यू की। तो इसमें तो ये साफ साफ दिख रहा है कि जी डब्ल्यू का ब्रदर इन लॉ ही है। वाई इट इज़ नॉट ब्रदर इन लॉ, जी इज़ आइदर ब्रदर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू और जी इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू सिस्टर। क्या ही कैसे है, मुझे लग रहा है कि ब्रदर इन लॉ ही, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि वो ब्रदर इन लॉ है, पता नहीं क्यों गलत है ये। सेकेंड नंबर, इसमें क्या लॉजिक लगाया इन्होंने, लेट्स सी। इसका इनका लॉजिक है 25 इंटू 18 प्लस 4, 18 5 ज़ा 90 और 30, 18 2 ज़ा 36 प्लस 9 450 प्लस 4। ओके, ओके लगा सकते थे, तो इसको कर सकते थे हम लोग। अगर मैं कॉन्स में देखूँ तो एक गलत किया है, अरे यार यही गलत किया है, इसको फिर से करते हैं। मार्क प्राइस इज़ 1.5 होल 5 36/7% ज़्यादा है, तो 100 अपॉन 100 1 प्लस 36/7, तो ऊपर चला जाएगा इज़ इक्वल टू, और हमको निकालना है कोई भी ना हो तो 100 अपॉन डिस्काउंट, कोई भी प्रॉफिट लॉस ना हो तो 100 माइनस डी अपॉन 100, ये आ जाएगा। तो पहले तो 100 कैंसिल करो, तो 7/43 इज़ इक्वल टू 100 माइनस का डी अपॉन 100। तो यहाँ से 700 इज़ इक्वल टू 4300 माइनस का 43D, तो 43D इज़ इक्वल टू 7 माइनस करो 0 0 6 36, तो D विड बी 3600 डिवाइडेड बाई 43, ये होगा आइडियली, होपफुली if I am not committing any mistake।
नहीं, कुछ तो मिस्टेक कर रहे हैं हम। व्हाट मैक्सिमम डिस्काउंट, अगर मार्केट प्राइस इतनी है 36, एक सेकेंड, ये है। हाँ, फिर से कोई गलती तो करी थी एज सेड। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 700 अपॉन 736, 100 माइनस टी अपॉन दिस। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो ये पहले तो कटेगा ये, पर मैं सोच रही हूँ काटती नहीं हूँ। इज इक्वल टू 736 माइनस का 736D। तो 736D इज इक्वल टू 3600। तो यहाँ से D इज इक्वल टू 3600 को 736 से डिवाइड करूँ। आई होप। तो ये 5 तो जाएगा लगभग, 4, लगभग 5 तो जाएगा ही जाएगा। तो 5%, तो मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक थी। हम लोग कौन सा कर रहे थे, ये वाला कर रहे थे ना, तो ये कर सकते थे। मैंने आंसर वैसे निकाल लिया, 396 नहीं, 396 ये था, 396 अपॉन रूट 3 था आंसर। ठीक, कहाँ गया, ये था 396 अपॉन रूट 3। तो ये तुम्हारा आंसर था विच वॉज x, ये निकालना था। तो इसको अगर रैशनलाइज करते तो 396 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3, तो ये तुम्हारा 132 आता, 132 रूट 3। देखा, इसको कर सकते थे। तो दैट वाज माय मिस्टेक, ये आता नहीं था, ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता है परसेंटाइल वाला। इसमें साइड ऑफ अ सॉलिड क्यूब इतना है, तो क्यूब का तो हमें सरफेस एरिया पता होता है, दैट इज़ 6a², यानी फॉर 2400 टू आइडेंटिकल सिलेंडर होल्स ऑफ रीच 7 सेंटीमीटर। एंड तो सिलेंडर होल्स की बात करें तो 2πRh, R प्लस एच होता है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर प्लस 7, यानी 7 + 8 15। तो यहाँ से 15 इंटू 2 होता है 30, और 22 इंटू 30 करोगे तो 660। फिर 660 दो हैं तो 660 इंटू 2 यानी 1320। बट कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे। लेट्स सी द सोल्यूशन नाउ। 3104 है ये। 2400 तो ये था तुम्हारा माइनस 2πRh। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर होल्स का इतना है 2πRh। अच्छा, इन्होंने क्या किया है कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है, मतलब ये तो मैंने टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया था तो सिलेंडर का, बट मतलब सिलेंडर ये तो तुम्हारा क्यूब हो गया, ठीक है। सिलेंडर की बात करेंगे तो सिलेंडर में पहले तो सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया, नहीं कर्व सरफेस एरिया जो होता है, दैट इज़ इसका जो सरफेस एरिया होगा इस पार्ट का, वो 2πRh होता है। तो यानी 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 8, तो यहाँ से 22 44, मतलब 44 इंटू, तो ये तुम्हारा 44 इंटू 16 32 कैरी 352, ठीक है 352 आया। फिर बेस का एरिया कितना है, मतलब इसका एरिया वो तुम्हारा πr² है, यानी 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये तुम्हारा 7 2 14, 154 और 352, 154 और 352, और ये 2 है, 308। तो इसको अगर मैं ऐड करूँ 308 प्लस 352, तो ये 660 हो जाएगा। बट 2πr² है, 308 और करूँ क्योंकि ये तो 2πr² प्लाई है, तो 2πr², 308, दो सिलेंडर है तो 308 इंटू 2 हो जाएगा।
तो तुम्हारा 616 आएगा। तो 616 प्लस 352 माइनस का 2400, मतलब टोटल आंसर है तुम्हारा 2400 माइनस का 308 प्लस का 308 प्लस का 2 × 352। ये असली एग्ज़ाम में ऑनेस्टली मैं इसको छोड़ ही देती हूँ। अब मैं इस क्वेश्चन को तो नहीं कर पाती। ये इसका क्या होता है ये देख लेते हैं। पहले ऐसे क्वेश्चंस में पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं। तो हमारे पास डेटा था 10, 20, 25, 30, 35, आई थिंक, और असेंडिंग में ही अरेंज भी हैं 45, 50 और 60। फिर क्या करना होता है इसमें, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है। फॉर्मूला फॉर द परसेंटाइल पोजिशन इज, इसका फॉर्मूला होता है PK इज इक्वल टू K/100 इंटू N+1। तो K तुम्हारा क्या है, मतलब P30 निकालना है। तो 30/100 इंटू 30/100 N+1 है, 9+1 10। तो N तुम्हारा 9 है यहाँ पे, ये फॉर्मूला होता है। तो ये 3 आएगा। तो मतलब थर्ड वैल्यू, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, दैट डिफ़िकल्ट। इट्स लाइक PK इज इक्वल टू K/100 N+1, ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके फिर 25, तो ये तो गलती हो गई, ये तो कर ही लिया था, इसको तो मैं छोड़ ही देती असली एग्ज़ाम में। इंग्लिश में आते हैं। तो हमने लगाया था ये वाला, इनका आंसर है इमिग्रेशन पॉलिसी से सिग्निफिकेंट। ओके, सेकेंड वाले में क्या था, क्यों गलत है ये? All the senior members of the academic faculty and students body knows the university distinguished chancellor and for his pioneering research is known to all seniors member। हमको फाइन सेलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेसेस द इज नोन टू ऑल, कब से होने लगा, इज नोन बाय ऑल होना चाहिए मेरे ख्याल से। हो सकता है भाई, फेस द म्यूजिक लगाया था, टू बियर द कम अक्रॉस व्हेन दे केम, टेक इट एज इट केम। अच्छा, ये तो गलत है। The new intern was praised for her attention on detail, her ability to work under pressure and her punctuality at meetings throughout the week। तो attention on detail है, इसकी जगह क्या होना चाहिए, attention to detail होना चाहिए। डाउट लग भी रहा था A और C में। 20th नंबर फ्रेंच मोस्ट कैम बिलवड, A और C गलत है, तो सिर्फ C आंसर है। बट ये जो FL था लिखा तो इसमें यही हुआ है कि कोमेमोरेट द फ्रेंच रिवोल्यूशन, बाद ही में हुआ होगा, फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद में ही तो हुआ होगा, बट पता नहीं क्यों ये गलत है। डोंट नो। इंग्लिश जनरल अवेयरनेस में तो गेस वर्क, सो मतलब मैंने बहुत गेसेस लगाए थे इसमें, एंड यू कैन सी मेरा गेस कभी काम नहीं करता है। सो आई एम वीक एट गेसिंग थिंग्स। अगर मुझे आता होगा तो ही सही होगा, वरना गेस तो मेरे साथ कभी मेरा लक साथ नहीं दिया है, नाइदर इन लास्ट ईयर मीन्स, और इस साल पता नहीं क्या ही होगा। तो इसमें मॉरल द स्टोरी इस इसकी मेरा गेस वर्क बहुत फेल होता है, और मैंने बहुत क्वेश्चन में गेस वर्क लगाया था, सोचा था कि शायद सही होगा, बट यू कैन सी द रिज़ल्ट, इट्स ऑल रॉन्ग। बहुत ही, आप देख सकते हो ये गेस, ये भी गेस था। फेरिंग्स, ये कैसे गलत हुआ? 1 2 फेरिंग्स स्टमक स्मॉल इंट, अच्छा फेरिंग्स स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन, या ये तो नॉलेज की कमी थी। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम इज़ ओल्डर देन हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, करेक्ट बताना है, तो ये सही था, और मुझे लग रहा था कि कोई भी सही नहीं है। ठीक है, नॉलेज। HTI के बारे में बताना था, तो सभी है, एक्सेस टू नॉलेज भी होना चाहिए। ओके 23rd NG रंगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने नहीं फॉर्म किया था क्या? स्वामी वॉज द प्रेसिडेंट एंड मेड द अच्छा, इसमें सेक्रेटरी की बात कर रहा था, सॉरी। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने फॉर्म तो किया था ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में, बट वो प्रेसिडेंट थे, तो ये तो मुझे लगता है कि गलती होना तय था। ये डोल जात्रा, ये तो पता था कि उड़ीसा का है, बट शैविज़म नहीं, तो इसका मतलब है कि वैष्णविज़्म फॉलो करता है, बिकॉज दो ही चलते थे। नहीं, वैष्णविज़्म भी नहीं है, नहीं है वही, क्योंकि राधा और कृष्ण जी है ना, तो विष्णु भगवान से रिलेटेड ही है, तो वो वैष्णविज़्म ही है।
25th नंबर क्या था? देखा, ये गलत हो गया यार। चैत्र वैशाख के महीने में बसंत ऋतु आती है। नॉलेज। स्वयं के बारे में ये गैस लगाया था, तो इसमें देखो देखो मैंने लगाया था 1 एंड 3rd, नॉट करेक्ट, और आंसर क्या है? सेकंड ओनली। तो मतलब कौन से एज ग्रुप होता है फिर? इसका मतलब है कि 18 टू 35 ईयर्स है। 18 टू 35, स्पेशली फॉर 18 टू 45, तो मतलब 10 साल और जोड़ दो। फिर इसमें क्या था? इसके बारे में तो नॉलेज ही नहीं थे, तो गैस भी लगाना, ए और बी। 10th नंबर, कस्टम ड्यूटी हाइक राइजिंग, इसका क्या हो सकता है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन बैरियर्स हटा दिया जाए। ये भी नहीं पता था। ग्रीन हाइड्रोजन फर्स्ट सेकंड थर्ड है, फोर्थ नहीं करेक्ट है। अचीव द हाफ डिकार्बोनेशन, हाफ नहीं होगा, फुल होना चाहिए, फोर्थ गलत है। 21, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो अभी मैं जो गैसेस लगा रही हूँ वो 3 गैसेस सही हो गए हैं, बट एग्जाम में जब मैं लगाऊंगी, जब मैंने मॉक दिया था तो जितने गैस लगाए थे सभी गलत हो गए हैं। सो इट्स लाइक मेरे साथ गैस वर्क नहीं काम करता है। मुझे बहुत ही सोच समझ के रिस्क लेना पड़ेगा, बिकॉज इट विल लीड टू द नेगेटिव मार्किंग फॉर श्योर। एज यू कैन सी बहुत जीके में नेगेटिव हुआ है। सो दिस इज़ इट फॉर द दिस मॉक, एंड प्लीज़ टू शेयर योर स्कोर ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स। थैंक यू गाइज।